بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں ہما ملک، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آج 144واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں شاعر مشرق کی تحریک پاکستان کے لیے جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ مفکر پاکستان کی ولادت کے دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں، جن میں اس عظیم شاعر کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 144ویں یوم پیدائش کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کمڈور عامر اقبال خان نے مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بھی مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ علامہ اقبال کے مزار پر جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد شہباز خان کور کمانڈر لاہور کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین نے بھی مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ مزار اقبال پر حاضری دینے والی تمام شخصیات نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور دیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 144ویں یوم پیدائش کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ شاعر مشرق کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر علامہ اقبال کا شعر بھی ٹویٹ کیا۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ شاعر مشرق کے فلسفہ خودی کے حوالے سے دیکھتے ہیں محمد شکیل ملک کی یہ خصوصی رپورٹ۔ علامہ اقبال دور حاضر کے عظیم فلسفی شاعر ہیں۔ ان کا کلام امید، حوصلے اور فکر فردہ کا پیغام ہے۔ خودی اقبال کے کلام اور ان کی ذات کا بنیادی وصف ہے۔ اسلام عالم رنگ و بو میں خودی کی کامل بیداری کا خواہاں ہے، اور اقبال عہد جدید میں وہ واحد فرد دکھائی دیتے ہیں جو بیداری خودی کی تحریک میں تنہا کرداری بصیرت کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اقبال مسلمانان ہند کی سیاسی اسیری کا سبب جہالت، ان میں فرسودہ سوچ اور احساس کمتری کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اقبال کے ولولہ انگیز کلام سے مسلمانوں میں تحریک پیدا ہوئی، ان پر طاری جمود ٹوٹا، ذہنوں پر لگے فرنگی تالے کھل گئے اور قدموں پہ پڑی غلامی کی زنجیر پاش پاش ہو گئی۔ کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو یہ خودی جو ہے یہ عشق کی بنیاد پہ ایک زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مرد مومن ہے، ایک سچا مسلمان ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی یقین کی گہرائی ہے، سوز حیات ہے، ذوق تخلیق ہے اور خود آگاہی ہے۔ اسی لیے اقبال تربیت خودی کو تعلیم کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ آج تمام اہل وطن اور ملت اسلامیہ مفکر اسلام اور عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آج کے دن ہمیں اقبال کی تعلیمات کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمیں کامیابی کی راہ دکھائی اس پر ہم نے کتنا عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہم پہلے سے بھی زیادہ اور سخت محنت کریں گے۔
فاروق حبیب نے کہا کہ علامہ اقبال کے پیغام اور فلسفے کو سمجھنے کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے عظیم شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 144ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ علامہ اقبال کا خواب در حقیقت اسلامی ریاست کا تھا، جس کا رول ماڈل مدینہ کی اسلامی ریاست اور قانون کی بالادستی اس کا اہم جزو تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کی جدوجہد اسی ریاست کے قیام کے لیے ہے جہاں انصاف اور قانون ہو۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس راشن رعایت پروگرام میں رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ پروگرام کا مقصد عام لوگوں کی قوت خرید پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے تحت کم آمدنی والے افراد رجسٹرڈ کریانہ یوٹیلیٹی سٹور سے کم نرخوں پر آٹا، دالیں اور کھانا پکانے کا تیل یا گھی خریدنے کے اہل ہوں گے۔ احساس راشن رعایت جو پروگرام ہے وہ احساس نیشنل بینک آف پاکستان کے اشتراک کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ کابینہ سے اس کی منظوری ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر یہ پروگرام لایا گیا ہے تاکہ مہنگائی سے جو عوام کو مشکلات ہیں اس میں کچھ کمی آ سکے۔ 1000 روپے ماہانہ کی 3 چیزوں پہ رعایت دی جائے گی۔ جو گھرانے بھی اس کے لیے کوالیفائی کریں گے، آٹا، گھی اور دالوں پہ رعایت دی جائے گی۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان مکمل سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے فائر بندی میں توسیع ہوگی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 1 اکتوبر 2021 کو اپنے انٹرویو میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا۔ ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ان مذاکرات میں ریاست کی حاکمیت، ملکی سلامتی، متعلقہ علاقوں کے امن، معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے متاثرہ افراد ہیں ان کو بھی قطعی طور کے اوپر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے افراد ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی۔ ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے یہ علاقے ایک طویل عرصے کے بعد مکمل امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کو عسکری حکام کی جانب سے خطے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ افغانستان میں موجودہ حالات کسی انسانی بحران کو جنم نہ دیں۔ افغانستان میں دیر پامن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام نے اہم خارجہ امور، داخلی سلامتی، اندرونی و بیرونی چیلنجز، خطے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں خصوصاً تنازع کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے جامع بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں پرخلوص طور پر مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام خطے میں امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ موجودہ حالات کسی اور انسانی و معاشی بحران کو جنم نہ دیں جو افغان عوام کی مشکلات میں اضافے کا باعث ہوں، اور اس سلسلے میں پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اجلاس میں اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اجلاس میں پاک افغان سرحدی انتظام کے حوالے سے بھی تفصیلات کا احاطہ کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد اس پہ اختلاف شہباز شریف اور سید یوسف رضا گیلانی، بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی رہنما شریک ہوئے۔
वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खसूसी दावत पर इस इजलास में शिरकत की। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, सेनेट में कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम, वफाकी काबीना के अरकान भी इस इजलास में शरीक थे। अरकान कौमी असम्बली शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, हिना रबानी घर, सैयद नवीद कमर, मोहसिन दावड़, ख्वाजा साद रफीक, सैयद फ़याज़ुल हसन, सेनेटर रज़ा रबानी और कौमी असम्बली की कमेटी बराए दिफा के अरकान भी खसूसी दावत पर शरीक हुए। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑन द होल अपोजिशन के कायदीन को एतमाद में लेना हमारा मकसद था, उन्हें एतमाद में लिया गया, पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। यहाँ पे फेडरेशन का जो डिसीजन होता है, फेडरल गवर्नमेंट की जो डिसीजन है, हम उसके साथ। कश्मीर का मसला 74 साल आया, इसकी यहाँ फिक्र हुई है और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई है पूरी शरह और बस के साथ। सियासी क़यादत के मुताबिक इस किस्म के इजलास में अहम कौमी अमूर पर इत्तफाक़ राय हम आहंगी को तक़वियत देने का भी बाइस बनते हैं। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में इस अज़्म का इजहार किया गया कि अहम कौमी मसाइल के हल के लिए सियासी और अस्करी क़यादत का मिल बैठ कर मुशावरत करना नागुज़ीर है। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। दराज प्रेजेंट्स 11/11। सब कुछ सील करो, आप इधर चेक करें। आप एक्सपेंसिव फर्नीचर, कीमती घड़ी, लेटेस्ट मोबाइल, आमदनी से ज्यादा असासे। कैसे? दराज से। हाँ? क्योंकि 11 नवंबर को लगती है दराज पे साल की सबसे बड़ी सेल 11/11, जहां आपको मिलेंगे बेशुमार बैंक डिस्काउंट्स और इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत। So download the app now। दराज 11/11। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान, कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल, काम की जगह पर ख़वातीन को हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तरमीमी बिल, फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल, कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफ़ाल तरमीमी बिल और निज़ाम इंसाफ बराए कमसिन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। वफाकी वज़ीर क़ानून डॉक्टर फ़रूग़ नसीम ने कौमी एहतसाब ऑर्डीनेंस में दूसरी और तीसरी तरमीम के ऑर्डीनेंस ऐवान में पेश किए। सवालों के वक्फे में वफाकी वज़ीर बैन सूबाई राबता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने ऐवान को बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए इक़दाम जारी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला शौकत अली ने बताया कि बलूचिस्तान में 87 नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स मौजूद हैं, जबकि 24 मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स भी दूर दराज इलाकों में काम कर रही हैं। और सेनेट ने मुतफ़क्का करारदाद के जरिए हक़ खुदरादियत की तवील जिद्दोजहद पर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पेश की गई करारदाद में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों और आलमी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। करारदाद में मुतालबा किया गया कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशों से बाज रहे और 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। सेनेट का इजलास कोरम पूरा न होने पर बुध की शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की बिगड़ती हुई सेहत और सलामती के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया है।
जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर को हल करे। उन्होंने इस तस्वाब राय के ज़रिए रियासती अवाम को हक़ खुद इरादियत देने के आलमी दायरे के मुतालबे पर अमल न करने की सूरत में भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। राजौरी और पूंछ में 30वें दिन भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फौजी एहलकारों ने पुलवामा, इस्लामाबाद और शुपैया में घरों पर छापों के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक एहलकार की अपने साथियों पर फायरिंग से 4 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। भारत में बढ़ती हुई हिंदू दहशतगर्दी के बायस हिंदुस्तान की सरजमीन दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए तंग हो चुकी है और अब मुसलमानों के बाद सिखों ने भी अपने लिए आज़ाद वतन की मुहिम तेज़ तर कर दी है, जिसके बाद महसूस होने लगा है कि शायद भारत ज़्यादा अरसा अपनी मौजूदा सरहदें बहाल न रख सके और रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाए। जी नाज़रीन, आज़ाद सिख रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी राय शुमारी का सिलसिला तेज़ हो गया है। इस सिलसिले में लंदन के साउथ हॉल और ग्रे विंड बेसन में मुनाकिदा रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने भारत से आज़ादी के लिए वोट डाले। इस मौके पर सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि आज़ाद खालिस्तान के हक़ में सिख कौम मुत्तहिद होकर अपने हक़ के लिए बाहर निकल आई है। खालिस्तान रेफरेंडम में जोश व खरोश अब भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनने से नहीं रोक सकता। रेफरेंडम के पहले मरहले में गुज़श्ता माह की 31 तारीख को लंदन में 30,000 से ज़ायद सिखों ने हिंदुस्तान में अपने लिए अलग वतन की हिमायत में वोट डाले। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रायशुमारी के नताइज को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि सिख वतन की हिमायत हासिल की जा सके। कनाडा की नायब वज़ीर ख़ारजा मार्टा मार्गन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इश्तराक के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि कनाडा के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी की तवज्जो और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मौज़िज़ मेहमान ने अफगानिस्तान से इनख़ला में ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक एक वफ़द भी अफगान वज़ीर ख़ारजा के हमरा होगा, जिसमें ख़जाने और तिजारत के वज़रा भी शामिल होंगे। अफगान वफ़द वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेगा। अफगान वफ़द की पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मईशत, ट्रांजिट, आमदोरफ्त और महाजरीन के बारे में बातचीत होगी। पाक फ़ौज ने अफगान सरहद पर फ्री मेडिकल कैंप कायम किया है। चमन बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 300 अफराद को चेकअप के अलावा मुफ्त दवाएं भी फराहम की गईं। पाक फ़ौज हर माह 2 से 3 बार फ्री मेडिकल कैंप कायम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी गुजरगाह 2 नवंबर से दोबारा खोल दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक साल की इब्तिदा के मुकाबले में अफगानिस्तान में ग़ज़ाई क़िल्लत के शिकार ख़ानदानों की तादाद में ड्रामाई इजाफा देखने में आया है। काबुल में चिल्ड्रन हस्पताल में रोज़ाना ऐसे बच्चे लाए जाते हैं जो खुराक की कमी के बायस शदीद कमज़ोर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान की 60% आबादी या 2 करोड़ 40 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 5 साल से कम उम्र 32 लाख बच्चे साल के आखिर तक ग़िज़ाई किल्लत से मुतासर होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक आने वाली शदीद सर्दियों के दिनों में अफगान ख़ानदानों की मदद के लिए उनके पास फंड्स नाकाफ़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इदारे यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। खाना जंगी और तवील गैर मुल्की तसल्लुत से निजात के बाद अफगानिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से इंसदाद पोलियो की ये पहली मुहिम है। इस दौरान 5 साल से कम उम्र के करीबन 1 करोड़ अफगान बच्चों को पोलियो की मदाफ़ती वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने हुक्मरान तालिबान के साथ बाज़ाब्ता बातचीत की और तालिबान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी टीमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि महकमा सेहत के अफसरान डेंगू सर्वेलेंस पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में जाएं ताकि कोरोना की तरह डेंगू से मनफी असरात को भी कम किया जा सके। सऊदी अरब से महकमा सेहत और सूबाई इंतज़ामिया के नाम हिदायत में वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से होने वाली अमवात पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि डेंगू से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ और मुतालिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स खुद डेंगू सर्वेलेंस प्लान की निगरानी करें।
सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हस्पतालों में डेंगू मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए और उन्हें हर किस्म की सहूलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि डेंगू से बचाव और इलाज के हवाले से गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि सेहत आमा की मयारी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वो इसके लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार्ड लाएं। लाहौर में डेंगू के केसेस की शरह में कमी आना शुरू हो गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मुताबिक इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 2977 है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 1943 जबकि निजी अस्पतालों में डेंगू के 1034 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब में डेंगू के 18 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। सबसे ज़्यादा मुल्तान से 5, भावलपुर से 4 और लोधरा से 3 केसेस रजिस्टर्ड हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खित्ते के 11 अजला के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 69 मरीजों का इलाज जारी है। कराची समेत सूबा सिंध में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में इस महीने अब तक 177 केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि हैदराबाद में मजीद 17 मरीज अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। इनमें से 4 खवातीन भी शामिल हैं। 15 मरीजों का ताल्लुक हैदराबाद से, जबकि एक का मिट्टी और एक का जामशोरों से है। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बायस कोरोना में दिन ब दिन वाज़े कमी देखने को मिल रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 42,373 टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.94% रही। मोहलिक वबा से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अब तक मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 28,558 तक पहुँच गई है, जबकि 1,206 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के 22,000 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 12,16,641 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 11,31,88,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। UN मॉडल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वाशिंगटन के दौरे पर आए हुए टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की सरबराह लामिया ज़िया ने पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा किया और सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान से मुलाकात की। वफ्द की सरबराह ने UN मॉडल में पोजीशन अवार्ड हासिल करने पर सफ़ीर असद मजीद और सिफारत खाने के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के तलबा को UN मॉडल में बेहतरीन पेपर पोजीशन अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वादी ज़ियारत को सनोबर के जंगलात से वाबस्ता एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के दूसरे बड़े जंगलात की वजह से पहचाना जाता है। 2 लाख एकड़ रकबे पर फैले सनोबर के जंगलात में हज़ारों साल पर मुहीत दरख्त भी पाए जाते हैं। मज़ीद तफसील ज़ियारत से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे ख़याल मोहम्मद की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। वादी ज़ियारत बलूचिस्तान की खूबसूरत तरीन सरसब्ज और शादाब सनोबर की जंगलात से वाबस्ता एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा सनोबर की जंगल की वजह से पहचाना जाता है। ये जंगल 2 लाख से ज़ायद एकड़ की रकबे पर फैला हुआ है। सनोबर की इस कीमती जंगल में हज़ारों साल फरमोई दरख्त भी पाए जाते हैं। सनोबर की सरसब्ज शादाब जंगल सतह समंदर से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और इनका शुमार बलूचिस्तान की सरतरीन इलाकों में होता है। ये ज़िला ज़ियारत का जो जंगल है, सुनना है कि ये एशिया में नंबर 1 जंगल है और इसके करीब जो इलाके हैं पूरा ज़िला ज़ियारत के चवतेर है, दांदवनी है, गुज़ा और नशबा और इस तरह बटे थे। जंगल दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर पर और एशिया का सबसे पहले नंबर पर आबाद जंगल है। ये ज़ियारत की खूबसूरती का दारोमदार भी सनोबर की इन्हीं जंगलात पर है। सनोबर की तारीखी जंगल की बदौलत ज़ियारत की खूबसूरत वादी और यहाँ की कीमती जंगल को देखने के लिए हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह ज़ियारत की सैर करने के लिए आते हैं। ख्याल मोहम्मद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ज़ियारत। और नाज़रीन, ख़वातीन की समाजी, माशरती और माशी शराकतदारी के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ख़वातीन को हर शोबा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जाते हैं। मुल्क की मईशत में ख़वातीन के किरदार और इन्हें दरपेश मसाइल के बारे में तफसील बताएंगी आपको अज़नैन ज़हरा अपनी इस रिपोर्ट में।
कहने में सिन्फ नाजुक मगर हौसले आहनी, कभी नस्लों को अपनी आगोश में समाती, कभी मुआशरे को अपनी फसाहत से संभालती। मुल्क तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, शहर हो या देहात, कर हो या कारोबार, आज की औरत हर मैदान का मजबूत सतून है। औरतें जो है वो हमारे माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपने घरेलू ज़िंदगी में भी वो आगे रहती है। माशरे में ख़वातीन को कई अहम पहलुओं के साथ देखा जाता है। एक तरफ वो अच्छी माँ है, एक तरफ वो एक अच्छी बीवी है और एक तरफ वो जॉब भी करती है और सब कामों को बड़े अच्छे अंदाज में जो है सर अंजाम दे रही है। औरतें काम करेंगी, अपने पैशंस, अपने ड्रीम्स परस्यू करेंगी एंड आई स्टिल थिंक दैट बीइंग अ मदर एंड बच्चों को पालना बड़ा करना, अपना घर भी संभालना एक फुल टाइम जॉब होती है, 24/7 जॉब होती है एंड मे बी एक्चुअली टफर देन अ करियर। जो औरत घर से निकल रही है ना, वो शौक के पीछे नहीं निकल रही होती है, बाज़ के पीछे ज़रूरत होती है, बाज़ के पीछे मजबूरी होती है और बाज़ के पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि उसको घर से निकलना ही होता है। वो माँ हो, बहन हो या बेटी, जिंदगी के हर पहलू, हर शोबे में इसकी काबिलियत के निशान मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत ने जहाँ ख़वातीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए ख़वातीन हकूक़ बिल और इंसदाद हरासा बिल मुतारिफ़ कराए, वहीं पर इनको तरक्की की दौड़ में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां हैं। ताहम अगर इन्हें मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ तो वो मुल्क की माशी तरक्की में बेहतर फ़राइज़ सर अंजाम दे सकती हैं। उज़नैन ज़हरा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब बैतुल माल और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से भावलपुर में 200 से ज़्यादा मुस्तहिक और नादार अफराद में जहेज़ फंड्स, माली इमदाद और तालीमी वज़ाइफ के चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुस्तहिक और नादार अफराद की फलाह बहबूद, माली इमदाद, तालीमी वज़ाइफ, जहेज़ फंड और इलाज मुआवजे के लिए माली इमदाद की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर मुवासलात पंजाब सरदार आसिफ खान नकई ने कहा है कि मौसम सरमा के लिए मरी में महकमा हाईवे में खुसूसी यूनिट कायम किया गया है। मरी में महकमे के पास जदीद मशीनरी, वसाइल और फंड्स मौजूद हैं। मोहड़ा शरीफ मरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि बर्फबारी के मौसम में सड़कों से बर वक्त बर्फ़ की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा ताकि मरी आने वाले सयाहों और मकामी लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। उन्होंने कहा कि मोहड़ा शरीफ रोड की तामीर मुकम्मल हो गई है। ये रोड इलाका मकीनों और मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए मौजूदा हुकूमत का तोहफा है। वज़ीर आज़म के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जंग में अरसे से वीरान पड़े पार्क में शजरकारी के साथ साथ पार्क की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई है। जंग से देखेंगे पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट। जंग का सबसे बड़ा चनाब पार्क साबिक दौरे हुकूमत में इंतजामी अदम तवज्जो के बायस वीरान पड़ा था और शहरियों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया था, जिसे अब वजीर आजम के विजन के मुताबिक 5000 पौधे लगाकर शजरकारी करने के साथ पार्क की तंजीनो आराइश के बाद पार्क को आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया और मेंबर सूबाई असम्बली मेयर मोहम्मद असलम परवाना ने किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन बिलियन सुनामी ट्री और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव्स क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत यहाँ पे हमने इस पार्क का इनॉग्रेशन किया है। 32 एकड़ पर मुहित पार्क में आवाम की सैर व तफरी के लिए बेहतरीन तंजीम आराइश की गई है ताकि शहरियों को तफरी के बेहतर मौके फराहम किए जा सकें। इसकी रेनोवेशन हुई है, ये बहुत खूबसूरत पार्क है, पौधे लगाए गए हैं, इसमें सफाई सुथराई का काम किया गया जो बहुत अरसे से वीरान पड़ा था और हमें यहाँ आके बिल्कुल बड़ी तब्दीली नजर आ रही है और उन्होंने पार्क को बड़ा खूबसूरत बना दिया है। पार्क की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर मेयर मोहम्मद अकरम परवाना ने इंस्पेक्टर्स की निगरानी में टीमें तश्कील दे दी हैं। सरसब्ज़ शदाब पाकिस्तान बनाने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। सैयद अदनान नूर, पीटीवी न्यूज़, छान। मौसम का अहवाल आप जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद। फिर न कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। डाउनलोड करें दराज ऐप और 11 नवंबर को ठीक 12 बजे एंजॉय करें गोल्डन आवर, जहां आपको मिले बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में। दराज 11-11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहां से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे
वो भी 11/11 पे। 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहा। कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। लैम -7 और स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।